अब हम यही करेंगे जो किए हैं अभी। हाँ, ऐड ही कर रहे हो। हाँ, एक बार नहीं, 1000 बार एवरी डे, एवरी क्लास में तुम लोग को कहते हैं कि ऐड हो रहे हो। तो अगर तुम्हारे घर में कुछ कुछ आवाज आ रहा है, इतना जोर से फालतू फालतू जो आवाज आ रहा है, माइक को म्यूट कर लो। हाँ, एवरी डे ही बात हम बताते चलेंगे। तुम लोग 7 से अब नेक्स्ट टाइम तुम लोग 8 क्लास में जाओगे। इतना तुम लोग को अपने घर का कथा कहानी तुम सारे लोगों के सामने आता है, ये क्या अच्छा है? हैं? अगर पेरेंट्स याद नहीं रखते कि मेरे बच्चे का क्लास हो रहा है, तो तुम याद रखो ना कि तुम्हारा क्लास हो रहा है। तुरंत अगर आवाज आ रहा है तुम्हारे माइक से, तो म्यूट करो अपने आप को। हाँ, चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। हाँ, ये तो हो चुका है ना, E1 और E2 हो चुका है। मैम E2 से करना। हाँ, E3 से करना है। मैम E2। E2, E2, अच्छा एक हुआ था, ठीक है। What is the cause of heat generation in the following situation? We apply brake on our fast moving car. So friction between the tire and the road. Heat generation is friction between the tire and road. Ma'am, what does frictional force means? हाँ, Ma'am, what does frictional force means? what is the Anika? Yes, ma'am. हाँ, what is frictional force mean? Oh, just wait. I'm making you understand. Just wait. मैम इसका आंसर आप क्या बोले? Frictional force. When we move on, when any surface, Ma'am, घर्षण। when any object, it is road. When any object move on another object or road, yeah, it is object. When this object move in upward direction, then the other object, that is the road oppose the motion of this A object. A force act between the road and the object, and this force just opposite to the force of the motion. This, if the motion of the object in this direction, then the force that is exists between the road and the object opposite to the direction of the motion, and this force is known as force of friction. When aeroplane move through the air oppose the motion of the aeroplane, and due to this frictional force come in existence, and protecting the aeroplane from the frictional force of the air. Aeroplane body is made up of duralumin, a not harder alloy of aluminium.
this duralumin have capacity to withstand against the high temperature. And all of you have seen the duralumin utensil in your kitchen. That is the cooker, pressure cooker. Pressure cooker, that is main handolium कहते हैं अपने local language में. It is alloy of duralumin. Duralumin. This can withstand against the high temperature. So, Ma'am, when two clouds collide, huh? ma'am, when two clouds collide, When two clouds collide, we will study in some chapter. There is a chapter electric related to the electric. If the collision takes place, the air between the two clouds get heated up, and then the current started flowing through the air. Air is bad conductor of heat, as well as it is bad conductor of electricity. But for accumulation of large amount of charge, it becomes conductor of electricity. So when the two clouds are collide with each other, the air between them get heated up and electricity started flowing through them. And this create the thunder and storm, lightning. You will study in 7th class in one chapter, that is just wait. Have given in chapter Ma'am, electric charges at rest. electric charges at rest. In that chapter, you will study in details. Now, yes, ma'am. people often jump up and down to feel warmer in cold weather. So if someone feeling warmer in cold region, so cold weather means there is heat generation that is giving comfort to the person. So what is the reason for the heat generation? The chemical reaction that is taken place inside the muscles. Suppose that all of you look on my video. Am I visible, clearly visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can feel it. If I'm rubbing my palm with each other, after few seconds, it get warm up. Means heat generation is taking place. If the two muscles are opposing they are moving. You can see they are moving. So one is opposing the motion of the other, and frictional force come in existence, and due to this frictional force, heat is generated. So in the jumping up and down, chemical energy get converted into heat energy. Chemical energy is stored in the muscles. Chemical energy is stored in the muscles Muscles. that converted into heat energy. Clear? And next, Yes, ma'am. chemical energy converted into heat energy. State two type of physical changes that may take place when a substance is heated. Two type of physical changes. One is the common. All of you are saying. What? Ma'am, melting of ice. Melting of ice. Ice. Very good. Melting of ice.
and one more melting of wax. melting of wax. Melting of wax. It is Ma'am, physical. switching off. But Ma'am, wax switching. मैम Ma'am, तब तो switching मैम off. कार्बन Right. डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ना। नहीं मैम Yes, ma'am. wax just chemical wait. हो जाए। Sanvi, just wait. When the candle burn, लाइट है कि नहीं है? all of you must listen. Don't make sound. When the candle burn, then carbon dioxide gas is produced by the burning of the wax. One the answer which came from you, it was the melting of wax, है ना? Melting of wax ही ना? किसी ने बोला melting of wax Yes, ma'am. means it is one. मैम मैंने बोला था। हाँ, कौन बोला था? जरा फिर से बोलो, वीडियो ऑन रखो ना। मैम प्राजिता। हाँ, प्राजिता. Melting of wax means only the change of state from solid state to liquid state. Here, in the burning of candle, all of you must pay attention. In the burning of candle, two changes takes place. One, melting of wax. First wax is melt now, so it is physical change. And Yes, when the wax burn, carbon dioxide gas is produced, so it is chemical change. So in the burning of candle, two changes take place. Chemical change, first physical change, and then after chemical change. But in the case of melting of wax, only the physical change. मैम वैक्स तो जलता Okay, ही नहीं होगा मैम, क्योंकि वो मेल्ट हो जाता है। एक बात बताएं उदित, हाँ, एक ऑइंटमेंट बना रहे थे हम विंटर सीजन में, उसको कैसे वैक्स को मेल्ट करवाएं सुनो। वो किसके लिए? मेरे वो जो है ना, हमारा स्किन जो है ना, एंकल का स्किन जो है मेरा, वो जो है सोल वाला बहुत हार्ड है, वो जेनेटिक होता है। मेरे फादर का भी वैसा ही हार्ड था, माँ का नहीं, लेकिन मेरे पापा जी का वैसे ही हार्ड एकदम सोल था। तो वो जेनेटिक, हमारा भी सोल बहुत हार्ड है। तो विंटर सीजन जब आता है तो स्किन का ड्राइनेस हो जाता है, और इतना ड्राइनेस हो जाता है कि वो बीच बीच से फटने लगता है। तो उसके लिए हम ऑइंटमेंट बनाते हैं। इस बार नहीं बना सके जाड़ा में, इस बार कम फटा, पता नहीं कैसे, लेकिन पिछले बार जाड़ा में जो है हम बनाए थे, वैक्स ले लिए और उसको मेल्ट किए थे। किसमें? वाटर बाथ में। अब तुम लोग बोलोगे कि वाटर बाथ क्या होता है? लैब में रहता है वाटर बाथ, लेकिन हमने घर में वाटर बाथ बनाया। कैसे? कढ़ाई में जो है ना वाटर ले लिए, कढ़ाई में वाटर ले लिए, और फिर जो है एक बाउल जो है स्टील का, अच्छा स्टील का, जो हाई हीट को विथस्टैंड कर सके, माने हीट रेजिस्टेंस है, वो अच्छा वाला स्टील वाला है। उसमें वैक्स ले लिया जो दिवाली में बचा हुआ। इस बार दिवाली तो हम दूसरे जगह थे, लेकिन वो दूसरे जगह थे शायद, नहीं यही पर थे, लेकिन मेरे पास कैंडल नहीं ला सके, पता नहीं क्या हुआ, कैंडल अभी नहीं। लेकिन उस बार बहुत सारा कैंडल बचा हुआ था, उसी का हमने ऑइंटमेंट बनाया। वो ले करके बाउल में वैक्स मतलब कैंडल, और उसको ले करके उस कढ़ाई वाले वाटर में बाउल को डाल दिया, तो वाटर बाथ बन गया। कढ़ाई का वाटर क्या बन गया? वाटर बाथ। डायरेक्ट हीटिंग नहीं, इनडायरेक्ट हीटिंग। तो वो वैक्स जो है मेल्ट कर गया। अब मेल्ट करने के बाद उसमें जो है ना हम मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर दिए, और मस्टर्ड ऑयल के साथ साथ 4-5 कैप्सूल जो है विटामिन सी का। विटामिन सी जो है ना बहुत स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तुम लोगों को साथ मैम वो साथ सेल्फ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैम जो एड में दिखाता है इवियन वाला, मैम जो एड में इवियन वाला कैप्सूल दिखाता है मैम, वो विटामिन ई से बहुत ज्यादा होता है मैम, वो सेल्स और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो हम जनरल लिए थे, और वो लगता है 2 रुपया में बहुत सारा कैप्सूल दिया था, उसको मिक्स कर दिए। और मेरी बात सुनो, ये हम तुम लोग को एक मतलब केमिकल जो है सॉल्यूशन इतना अच्छा वो बन गया कि वो विदिन लगता है 4-5 डेज मेरा वो जो इतना फटा हुआ था उसका हीलिंग हो गया।
वो शायद बहुत क्या करता है ना, विंटर में तो मॉइस्चर ड्राई एयर रहता है ना, तो ये मॉइस्चर खींचता रहता है, उसको लगा देने से कंप्लीट जो है पैकिंग हो जाता है, तो मॉइस्चर जो है प्रोटेक्टेड हो जाता है, प्रोटेक्ट रहता है, और इसके वजह से शायद नहीं फिर फर्दर फटता नहीं है और हीलिंग भी हो जाता है। सेल भी मॉइस्चर रहेगा, सेल कैसे फॉर्म होगा, हीलिंग है, यहाँ क्रैक हो गया तो हीलिंग कैसे फील होगा, न्यू सेल का जनरेशन से ना, तो हो सकता है कि वो उस प्रोसेस में न्यू सेल का जनरेशन भी फास्ट रेट से होता हो। अब इस पर रिसर्च नहीं किया हमने, केवल हम देख करके सुने थे और 2-3 बार ये एक्सपेरिमेंट किए और वो अच्छा रहा। तो ये वैक्स का मेल्टिंग हमने किया है, आप डायरेक्ट हीटिंग से भी मेल्ट करवा सकते हैं, और वाटर बाथ वाला जो है ये भी करवा करके देख सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। कढ़ाई में, घर में कढ़ाई सबके घर में है, कढ़ाई में या फिर कोई जो है मोटा जो थिक बॉटम वाला कोई भी यूटेंसिल ले लीजिए, उसमें वाटर रखिए और कटोरा में बाउल में लेकर के कैंडल को और उसको रख दीजिए उस वाटर में, तो हीटिंग हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब इस बात मैम को पर हमेशा वैक्स याद जब हम रखना लोग है। जब बर्न करते हैं, क्या बोला मैम जब होगी? हम लोग मैम जब हम लोग वैक्स को बर्न करते हैं तो मैम वो मेल्ट कर जाता है, तो मैम हाँ। मैम तो वैक्स जलता ही नहीं होगा मैम, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं मैम वो जलता है, सारा तो बर्न बिल्कुल नहीं जलता है। आज जो हम बोले ना, तुम भी अपनी मम्मी का पैर देखो ना, जरा सा भी अगर उसमें ये होगा, क्रैक होगा, तो ये वाला काम करके देखो, बना दो मम्मी के लिए। मेरी मम्मी एक बार बनाई भी थी। बनाई थी तो तुम देखे थे ना वैक्स का मेल्टिंग? यस मैम, यस मैम। हाँ, ठीक है। मैम उसका पानी पैर में लगाया जाता है ना? अब उतना हम रिसर्च नहीं किया, बाहरी पैर में केवल आउटर सरफेस में लगाते थे, और वो विंटर सीजन में लगा करके, और डिफिकल्ट टास्क था वो, इसलिए विंटर में काम भी कर जाता है, पड़ता भी लोग को विंटर में ज्यादा है, उसके ऊपर सॉक्स पहनते थे ताकि वार्म रहे, वैक्स जो है थोड़ा मेल्ट क्या सेमी सॉलिड फॉर्म में रहे, तो सॉक्स पहन के हम सो जाते थे। हम ये काम किए हैं, ये एक्सपेरिमेंट किए, हमको अच्छा लगता है। कुछ भी अगर जानो तो उसको एक्सपेरिमेंट करो उस पे, और क्या उसका रिजल्ट आता है उसको देखना हमको अच्छा लगता है। कम से कम कुछ नहीं कर सके, ऑब्जर्व तो किए ना, ऐसा ऐसा होता है तो मन को खुशी मिलती है। चलो नेक्स्ट मैम आप उसका क्वेश्चन करें। अपराजिता, क्वेश्चन आंसर हो आज, दूसरे क्लास में रेस्पिरेशन भी शुरू हो गया, इसलिए चलिए। इन व्हाट वे डज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी थर्मोमीटर? इसके आंसर के लिए कि clinical thermometer differ from ordinary thermometer in two aspects. Clinical thermometer have a king and constriction, and other the calibration of clinical thermometer from 35 to 42 degree Celsius, है ना? ये दो है, 2.65 में देखो, the clinical thermometer, Yes, ma'am. the clinical thermometer differ from an ordinary or mercury in glass laboratory thermometer in two respects. It is calibrated from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius only. This is so because this is the range over which the temperature of normal human body can vary. Second aspect, it has a slight bend or kink in its capillary tube. This kink is given the name constriction. Constriction ensures the mercury thread does not fall back by itself. ये टू एस्पेक्ट। नेक्स्ट, अब ये इंटरेस्टिंग, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हमारी जरूरत नहीं है।
अनम्यूट करके इसका आंसर करेंगे जल्दी से जल्दी। इसका आंसर हम नहीं करने जा रहे हैं। स्टेट द मोड एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन द फॉलोइंग सिचुएशन। चिन्मय, चिन्मय का नाम छवि का पहले आ गया। छवि रानी, चलो। अ पेपर कप full of hot soup laying on a table. Ma'am, it will take some time to cool down. मैम कंडक्शन होगा। कंडक्शन, कंडक्शन क्यों होगा पता? क्यों कंडक्शन होगा? मैम कन्वेक्शन। हाँ, कन्वेक्शन। देखिए हर एक एस्पेक्ट को सोचिए, अगर ये होगा तो क्यों होगा? हाँ, ये होगा तो क्यों होगा? ये करना सीखिए, सोचना शुरू कीजिए। हाँ मैम पेपर कप के मैम जो मॉलिक्यूल्स है मैम वो वाइब्रेट करेंगे तो हम कंडक्शन ना होगा। नहीं, देखिए ना क्या होता है ना कि कोई भी चीज हॉट ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिएगा तो एनर्जी वो रेडिएट करना शुरू करता है। और अब तो जो आसपास हॉट सूप को रखा है टेबल पे, तो वो हॉट सूप जो है हीट नियर जो हॉट सूप के पास जो एयर है वो उससे क्या ले लेगा? हीट लेगा, है ना? हीट Yes, ma'am. और convection और फिर liquid वहां और से gas escape कर जाएगा। फिर नेक्स्ट एयर आएगा वहां पे हॉट सूप के पास, फिर वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर एस्केप करेगा। तो इस तरह से ये जो कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, लिक्विड है, अगर वो प्लेस्ड है तो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर जो होगा वो कन्वेक्शन। जैसे हम लोग विंटर सीजन में नहीं आग नहीं But ma'am- तापते हैं। आग तापना समझते हो तुम लोग? नहीं मैम रेडिएशन के थ्रू आता है। हाँ, वो रेडिएशन से आता है ना? वो रेडिएशन से आता है। लेकिन जिस रूम में जब वो वुड को या फिर कुछ को भी गर्म करते हैं तो कन्वेक्शन से पूरा हीटिंग होता है। पूरे रूम का हीटिंग जो होता है, पूरे रूम का एयर जो हीट होता है वो किस मेथड से होता है? कन्वेक्शन से। convection. और हम लोग भी हीट रेडिएट करते हैं। हम लोग करते हैं कि नहीं करते? करते हैं हम लोग सारे। मैम पर हाँ, मैम इस सिचुएशन में ये मैम ये कप अपना हीट इस टेबल में मैम हाँ, करेगा। ये जो है ना हम लोग हीट अपना रेडिएट करते हैं, बता देते हैं। और ये जो रेडिएशन हम लोग के बॉडी से जो रेडिएट करते हैं हीट, उसी वेव को पकड़ करके रात को जो है ना कौन आता है हम लोग के पास? मस्कीटो। वो जो रेडिएटेड हीट है ना उसी को कैच कर करके वो आता है। उसके पास कुछ रीडर है उसके बॉडी में, तो उसी को कैच करके हम लोग के पास आ जाता है। मैम बट मैम पेपर कप से जब मैम टेबल पे हीट ट्रांसफर होगी तो मैम तो वो कंडक्शन मेथड से होगी। हाँ, टेबल पे होगा तो कंडक्शन मेथड से होगा बेटा। टेबल पर एकदम मैम यहाँ बिल्कुल- टेबल ही दिया है। मैम यहाँ हाँ। पे तो नहीं बताया। लेकिन यहाँ कैसे कुछ होगा? बताया नहीं है। ये बता रहा है कि हीट ट्रांसफर, तो पेपर कप रखा है फुल ऑफ हॉट मैम टेबल पे रखा है तो मैम हाँ। ये तो टेबल पे ही मैम होगा। उदित फुल ऑफ हॉट सूप, एक कप रखा है यहाँ पे और वो कूल हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना? होगा। Yes, वो ma'am. डिपेंड करेगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर। ये बताए हैं तुम लोग को न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, है ना? कितने देर में होगा वो डिपेंड करेगा Yes, डिपेंड ma'am. इन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एंड द सिस्टम। कप में जितना हॉट होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, उसके डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो कूलिंग जो होगा वो हॉट तो वो कन्वेक्शन करंट से धीरे धीरे एयर जो आएगा सराउंडिंग का एयर वो हीटेड हो जाएगा और उसका हीट वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा कप का। तो इसमें मैम जब दो चीज का Hundred. टेम्परेचर मैम इक्वल यहाँ पे होता है टेबल तो का बताया नहीं गया कि वुडन है या नहीं। पेपर मैम कप अगर तो दो पेपर कप सुनो ना, पेपर कप तो वैसा कंडक्टर नहीं है। पेपर कप तो कंडक्टर नहीं है, वो बर्न हो जाता है। देखो कुछ लोग एकदम आराम से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग रिमूव हो रहे हैं।
क्योंकि उनको पता है कि ग्रुप में तो मैम तो क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे, लिख लेंगे, सुनने से तो कोई मतलब नहीं है। कैसा एटीट्यूड हो गया, केवल घर बैठे सुनना है। मैम हाँ? मैम अगर दो सब्सटेंस है मैम, एक में ज्यादा हीट है एक में कम, तो मैम ज्यादा वाला कम वाले तो में ज्यादा वाला हीट करेगा, तो ट्रांसफर कर देगा, किसी मेथड से हीट ट्रांसफर कर देगा ज्यादा वाला। और वो किस जब दोनों ही मैम दोनों अगर इक्वल टेम्परेचर में आ जाएंगे तो वो मैम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ हाँ, जाएगा। वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और थर्मल इक्विलिब्रियम में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। चलो मैटर सब आएगा बेटा, बस सब देखते चलेंगे। चलो डील करते हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन दिया गया है। कुकिंग, हाँ, कुकिंग वेजिटेबल्स इन पैन। जल्दी से कोई आंसर करो। कंडक्शन, कंडक्शन, हाँ, कंडक्शन से, कंडक्शन, हाँ, वेरी गुड। वो बॉटम जो है ना, यूटेंसिल का बॉटम जो है हीट फ्लेम को ऑब्जर्व करेगा, और फिर बॉटम सप्लाई करेगा वेजिटेबल्स को हीट। मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट बार इन ए स्कूल बैग ऑन द हॉट डे। जल्दी से रेडिएशन, Radiation. हाँ, रेडिएशन, वेरी गुड। रेडिएशन, रेडिएट एनर्जी Radiation एब्जॉर्ब consumption. करके, रेडिएट एनर्जी सन रेडिएशन एब्जॉर्ब करके मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलो रेडिएशन, Yes. वेरी गुड। चलो तो देखो तुम लोग एकदम आंसर कर सकते हो बढ़िया से। कुकिंग फूड इन माइक्रो ओवन। Convection. कन्वेक्शन, देखिए, कंडक्शन, हाँ, कन्वेक्शन। मैम अब एक, कन्वेक्शन। हाँ, एक बात सुनिए ना, हमको पहले जो है, पहले जब हम इसको देखे इस क्वेश्चन को, हम सोचे कंडक्शन, फूड उसमें रखते हैं, लेकिन वो हम ओवन का, माइक्रो ओवन का पूरा उतना नहीं समझ में आया, उतना देखे भी नहीं, लेकिन वो मेथड थोड़ा जो समझ में आया, और वो लिखा भी रहता है माइक्रो ओवन में, देखिएगा, कन्वेक्शनल हीटिंग, है ना, और वो कन्वेक्शनल करंट से ही हीटिंग होता है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर में कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है फॉर कूलिंग, तो जस्ट अपोजिट टू दैट इसमें भी क्या होता है, हीटिंग के लिए भी कन्वेक्शनल करंट। तो वो मैम क्या माइक्रोवेव में मैम वहाँ की एयर मैम हीट होती है। नहीं, वो रॉड जो रखा हुआ रहता है ना, वो इलेक्ट्रिक हीटर Yes, के ma'am. जैसा वर्क करता है, और फिर उससे जो उसके अंदर जो एयर है वो हीटेड हो गया, और वो जो ऑब्जेक्ट रखेंगे उससे वो हीट ट्रांसफर करता रहेगा, और धीरे धीरे Okay, ma'am. वो कुक हो जाएगा। यही उसका मेथड। मैम समझे नहीं, मैम समझ में नहीं आया कैसे उसमें convection होगा। तो हम ये तो नहीं बताएंगे अभी, माइक्रो ओवन का स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, तुम बताना कल यूट्यूब पर देख कर। कल जो है ना छुट्टी है ना, Yes. कल छुट्टी Yes, है, यस मैम, तुम यही yes, चीज, हाँ, ये हम देख वीडियो लेना। बना के भेजेंगे। हाँ, ये तुम्हारा वर्क हुआ, तुम देख करके बताओगे। हाँ, हाँ, यूट्यूब पर। Okay, ma'am. हाँ, चले अब आगे बढ़े। अब व्हाट इज मीन्ड बाय सी ब्रिज? The cool air coming from the sea to the land is called sea breeze. Ma'am, It cooler occurs in air the from daytime. above the sea then rushes When does it occur? take place. We call this movement in of daytime. Occurs sea breeze. In the Daytime. daytime. हाँ, इट अकर एट डे टाइम। देखो अब आज भी चला गया टाइम, अब 10 मिनट्स बस हम लोग के पास है, जल्दी चले। यहाँ देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरेंजमेंट shown in the figure. Pin A, B, C, D are fixed to the circular metal loop with the help of wax. wax से, हाँ, देखो कितना अच्छा हुआ। 26 सानवी तुम लोग बनाए थे एक्सपेरिमेंट, हाँ, देखे, लाइव देखे, तुम लोग करके देखे, करके सीखे। अब कितना अच्छा, सभी लोग वीडियो देखे। अब इसका आंसर तुम लोग आराम से कर सकते हो कि ये कह रहा है कि कौन सा जो है, ये जो है, द सर्कुलर मेटल लूप इज हीटेड एट पॉइंट ए पर हीटिंग हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कैंडल फ्लेम। इन विच ऑर्डर वुड द पिन फॉल इफ AB is larger than AD? AB जो है, AB का जो डिस्टेंस है किससे लार्जर है? मैम मैम स्मॉलर AD का डिस्टेंस, AD is larger than AB. AD is larger ma'am. than AD. तो कौन सा पिन Ma'am, पहले BC. फॉल करेगा?
B. मैम मैम B। सबसे B B, हाँ, मैम सबसे पहले A, फिर B, फिर D, फिर C. आंसर A नहीं पहले, हाँ अगर तीन A के मैम A, पास B, A C. है, A के मैम बाद A, B और A, B के B, बाद B के D. बाद कौन होगा? D. D. Yes मैम मैम A B D C। A, B, D, C. हाँ A, B, D, C. As हाँ C is nearer to the candle A, B, than C equally, will fall. हाँ it will be transferred to D and then C. यहाँ देखिए ये पहले क्या होगा? A, फिर B, B फिर ये B, Ma'am, D. D, मैम D, and then C. last Ma'am, D. C. and last C. चलिए यही ऑर्डर होगा. Give reason for the following. Iron beam are heated red hot before fixing them on the cart wheel. Ma'am, And because iron expands because on the heat. rims have a Because smaller the diameter diameter than the wheel. of the exposure. the wheel easily. When it is cooled, it contracts and erect the wheel firmly. ठीक. When iron rim is heated, there is expansion in the iron rim, and then it is easier to fix on the cart wheel. When it is cooled down, it hold the Ma'am, it wooden contract wheel and firmly. the wheel. चलो And it next. contracts and erects the wheel firmly. A clinical thermometer has slight bend or kink in its capillary tube. अब दो जन A clinical- राजिता सानवी आंसर कर चुके हैं. नेक्स्ट कौन करेगा आंसर? हु विल आंसर? मैम अनिका. हाँ मैम मुझे try. चलो जल्दी अनिका. जल्दी. हाँ A clinical thermometer has a slight bend or kink in its capillary because it doesn't allow the temperature to fall down. हाँ Fall वेरी down. गुड. राइट आंसर यही है ना. A clinical thermometer has slight bend, Yes, ma'am. bend or kink, so that the mercury thread doesn't fall down automatically after taking the heat temperature of a body. चलो रवि शंकर, you are unmuted. बहुत दिन से आंसर नहीं किया. जल्दी से नेक्स्ट का आंसर करो. A new quilt is warmer than old one. जल्दी. New quilt is warmer than old up. And rest of you will raise your hand who want to answer this question. जल्दी से hand raise करो. सानवी शर्मा. Ma'am, Or- because it has more. Ma'am, can I? A new quilt is warmer warmer because the ink which is हाँ. trapped inside the cotton or woolen clothing acts as an insulator and does not allow the transfer of heat. Ah, very good. New quilt have better trapping of air inside it. As we are knowing कि air is bad conductor of heat, so it keep our body more warmer than the old one. Very good. A brass tumbler feels much cooler than a wooden tray on chilly day. Who will answer? जल्दी से hand raise करो. उदित, चलो आंसर कर दो जल्दी. Yes, ma'am. हाँ. Ma'am, a brass tumbler feels much cooler than a wooden tray on a chilly day because it is a brass tumbler is good conductor of. Ma'am, because a brass tumbler is a good conductor of heat. Because the glass tumbler is good conductor of heat. That's why it feel much cooler. चलो ज्ञान प्रकाश थोड़ा वीडियो ऑन करो. ऐसा तो नहीं बच्चे ऐड हो करके और चले जाते हैं कहीं. कुछ का रिपोर्ट हमको Ma'am, मिला. Chavi also wants to answer. ए पुरु आंसर करो. नेक्स्ट. The bottom of cooking utensils are often kept black. Puru Ranjan. Ma'am, Chavi also wants to Yes, answer. ma'am. Puru Ranjan. Yes, ma'am. The bottom of cooking utensils are often kept black. Ma'am, can I? Just Ma'am, wait. can I answer?
गुरु चलो, कौन बोला था पहले? मैम छवि रानी। छवि रानी, चलो आंसर कर जल्दी से। Because the bottom of the cooking utensils are often kept black because black color is a good conductor of heat, so it will help the utensil to heat faster. हाँ, very good, very good. Black body is good conductor of heat. So the bottom of cooking, cooking utensils are often kept black to absorb the more amount of heat flame. Next, Akshit visited Rishikesh for river rafting during the summer holidays. At a campsite, there were two tents, one made up of black fabric and other made up of white fabric. Which one should Akshit prefer? Give reason Ma'am. for choice. Should Ma'am, can I answer? Akshit prefer the same tent during the winter? अब 3 क्वेश्चन है। पहले तो ये आंसर कीजिए कि which one should Akshit prefer? Ma'am, Ma'am, can I white answer? Ma'am, white, fabric. white one because White it fabric. it will Yeah, ma'am, I should buy. Ma'am, Akshit should it will prefer reflect white the fabric dark. tent. हाँ, एक हो गया। आप सब मिल करके एक बोलने लगते तो दूसरा चुप रखो Ma'am, ना। white fabric tent. चलो विंटर Ma'am, में white fabric. क्या है कि अक्षित should Ma'am, winter prefer में black. हाँ ब्लैक टेंट और रीजन Ma'am, कि white ब्लैक fabric बॉडी इज गुड because- ऑब्जर्वर ऑफ हीट Heat. Heat. and Akshit should not prefer the same tent during the ये तो ये समर सीजन है ना। ए समर Yes, ma'am. ए देखो गलत हो Ma'am, गया ना। summer में white. हाँ Ma'am, तो summer summer में में white. हाँ तो अक्षित यहाँ देखो फिर से स्टार्ट देखो which one should Akshit prefer? तो white color tent White. is preferred by Ma'am, white color Akshit tent. है और क्यों रीजन कि white Because can it- reflect Ma'am, the it heat radiates more heat than the black color tent. and Akshit should prefer the black tent during the winter because of black body black tent or black body is good absorber of heat. That's why it will keep the tent warm. warmer. Next, explain briefly how wind are caused. अब हम नेम से कहेंगे अलग अलग सब मिलकर एक साथ आंसर करते हो ये ठीक बात नहीं है। चलो तो ज्ञान प्रकाश इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ विंड्स आर कॉज्ड। सभी से पूछेंगे, सभी रेडी रहे इस बात के लिए। ज्ञान प्रकाश नो ये क्या हो गया है आजकल जो है सौम्या